Good evening once again. Today we will take up the remaining parts of limits. So write down today's topic. It will be limits. Today's date is 26/09. People, yesterday we did a few things on limits and I know I went a little fast, but I request, yes, we will do the last class on limits. We will revisit limit once their exams are over, like on 5th they have their maths exam. After that we will do few more questions on limits and continue with the derivatives. As of now, I'm doing as much as it is required for the exams. Okay, so I suggest go through the recording once, twice. You will be able to grasp all the concepts because this is a pretty easier topic. In limits, there are only four things left. The four formulae actually which is to be discussed. Write down the first one. People, exponential जब रहता है, जैसे कि limit when x tends to 0, e power of x minus 1 divided by x. Right? So this particular thing, the value comes out to be 1. Sir, why is that? When we do series, you will see that I will write e power of x as 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial. Like this, I'll be giving you a formula for e power of x. So when you put this over here and minus 1, then this minus 1 will go. And then 1x will get cancelled. I mean e power of x minus 1 क्या हो जाएगा? If you see over here, e power of x minus 1 will be equal to this. And if I divide it by x, then I divide it by x, then 1x will cancel all this. And if I take limit x tends to 0, you will see that I'll have 1 plus x by 2 factorial plus x square by 3 factorial and so on. And if I put x tends to 0, all of these terms will get vanished. I'll only have 1. So as of now, we will not go for the proof. Remember the result. So write down remember, the first one. Remember it is x tends to 0. The second one, limit when x tends to 0. People, here e is an exponential. E एक constant है 2.301 ऐसा करके कुछ वैल्यू होता है. और अगर ये जो constant अगर ये e नहीं रह करके कोई दूसरा constant रहा, जैसे कि a power of x minus 1 divided by यही वाला x, तो इसका आंसर 1 नहीं होता है. अगर e a बन जाएगा तो आंसर हो जाएगा log of a, log to the base e actually. I think Rahul, you should understand, if in the second one अगर a का वैल्यू e हो जाता है, आप लोग log पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? So write yes or no? No. Okay. Then it might be difficult, but you know, अगर a is equals to e, then this will become e power of x, the same formula, and log a के जगह ये हो जाएगा log e to the base e. इसका वैल्यू होता है 1. इसी कारण हम लोग इसका रिजल्ट याद रखते हैं log a. अभी इसको रटो, क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन भी मैं आपको अभी प्रूफ बताने के टाइम नहीं है ज्यादा. So remember the second one. The third one you should remember is limit x tends to 0 log 1 plus x divided by x. इसका भी वैल्यू होता है 1. ये तीसरा वाला आपको याद करना है, लिख लो. And the last one which you should remember, the last one which you should remember is this: limit x tends to 0 1 plus x to the power of 1 by x. इसका वैल्यू होता है e. So some of you have studied log, others have not studied. So सर ये वाला प्रूफ यार, प्रूफ तो अभी नहीं बता सकते, टाइम नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों को आंख बंद करके पहले याद करो. गिविंग यू जस्ट 1 मिनट. तो टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1 मिनट टाइम दिया, जल्दी जल्दी इसको रटो. एंड फिर चैट बॉक्स में लिखोगे रट्टा डन.
सर आप रट्टा करवा रहे हो यार, फॉर्मूला तो रटवाना ही पड़ेगा। चलो याद करो एंड राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, रट्टा डन। ये 4 फॉर्मूले याद रखने, कल के क्लास में 4-5 फॉर्मूले याद मैंने करवाया था, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम्स में। हाँ जी, सेइंग समथिंग। हेलो Yes. सर, ए और ए में क्या डिफरेंस है? हाँ, ए कोई भी कांस्टेंट है राहुल, जैसे कि 2, 5, 7, मगर ई क्या है, एक लॉगरिदमिक एक्सपोनेंट। ई वैल्यू इसका होता है 2, ये कांस्टेंट है जिसका स्पेसिफिक वैल्यू है 2.301 ऐसे करके कुछ जाता है, टर्मिनेट नहीं करता है। जैसे कि अगर मान लो क्वेश्चन रहा कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 7 पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, log 7। समझे, यहां पर a की जगह 7 आ सकता है, सो a इज एनी कांस्टेंट, लिख लो। सो हियर a इज एनी कांस्टेंट। Ratta done, only one person has written Ratta done, others not learnt yet. Kashifa, check it out. 4 फॉर्मूला है जी, याद करना डिफिकल्ट नहीं है। Let's take up the question. So Rahul has done, Kritika, Kashifa also Ratta done. Wow, क्या बात है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाएंगे, आ जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा महिमा प्लीज नोट करना यार, ये जितने भी 4 फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर दिया है ना, एवरीवेयर लिमिट में x 0 को टेंड कर रहा है, ध्यान देना, देखो। और अगर 0 को टेंड नहीं करेगा तो हम लोग थोड़ा सा सोच समझ के बनाएंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, सपोज e पावर ऑफ 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है, तो आई थिंक दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। So I remember the formula limit x tends to 0 e power of x minus 1 by x का वैल्यू होता है 1। तो इसको 5 की कमी है, तो इसको मैंने 5 दे दिया। So write down limit x tends to 0 e power of 5x minus 1 divided by 5x। 5 की कमी थी, 5 दे दिया, तो एक मल्टीप्लाइड बाई 5 दे देते हैं कंपनसेट करने के लिए। और ये वाला जो पोर्शन है इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 इंटू 5 इज 5। क्या बात है सर, आप ना बहुत इजी बना देते हो, जब हम क्वेश्चन बनाने जाते तो ही टफ लगता है। चलो कम से कम मेरी बातें तो आपको इजी लग रही हैं। आ जाओ जी, नेक्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखो, अब ये 2 पावर ऑफ x, जहां आप इस टाइप को देखो तो ये 4 में से एक फॉर्मूला आपको याद आएगा। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, आई थिंक a पावर ऑफ x आपको लगाना है। तो लगाने के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, इसको x की कमी है तो इसको x दे देंगे। तो व्हाट कैन आई राइट, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पावर ऑफ x माइनस 1, आई विल राइट x हियर। अगर मैंने इसको x दे दिया तो ऊपर में x कंपनसेट करेंगे और नीचे वाला पोर्शन को हम कॉपी कर देंगे। अब सर ने बताया था कि 2 फंक्शन है, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, और लिमिट दोनों में ये प्रोडक्ट है फंक्शन का, तो लिमिट जो होता है दोनों में बट जाता है। तो पहले वाले में बटेगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट। अब दूसरे वाले में हम निकालेंगे अलग से x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, समझ में। तो फर्स्ट वन आई थिंक इज विल कम log 2 multiplied by, by the formula, multiplied by this one I cannot put x equal to 0 because 0 put करेंगे तो ये ऊपर में 0 आ जाएगा और नीचे में 1 minus 1 अगेन 0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लोग ना इसको रैशनलाइज कर लेंगे जी। मतलब सर क्या बोलते हो सर कि x टेंड्स टू 0 ऊपर में 1 प्लस एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे में -1 ऑलरेडी है, इसके +1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
सर ये आप क्यों कर रहे हो? ताकि ये नीचे वाला पोर्शन में x हट जाए या तो x ऊपर वाले से कट जाए. So I hope you are smart enough. A minus b, a plus b, a square minus b square, 1 plus x minus 1, 1 कट जाएगा, नीचे बचेगा x, ऊपर बचेगा x, तो ऊपर और नीचे का x कट जाएगा. अग्री? तो अब x का वैल्यू 0 पुट करो. If x becomes 0, then 1 plus 1 will become 2. So this portion, the value will be 2, and here the value is already log 2. So your answer will be 2 log 2. Right? Okay, if you have understood. 2 पहले है, मतलब यहाँ इसका वैल्यू आएगा 2 and इसका वैल्यू है log 2. So the answer overall will be 2 log 2. Right? Got it? Kritika, no reply. All okay? Oh, Kritika is not there in the class. All right. चलो चलो. Copy कर लिया? Right, done. Let's take the third one. Let me take a little bit difficult question, maybe from your exercise. Let's take limit x tends to 0, 3 power of 2 plus x minus 9 divided by sin x. People, I am sure if I give you enough time, you will solve this. But since I do not have much time, let me solve it and match. You don't just copy, you can also start doing. Limit x tends to 0. अब देखो इसको मैंने देखा तो ये अलग हो जाएगा. 3 पावर ऑफ 2 प्लस एक्स क्या होता है? 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर ऑफ एक्स. अलग अलग हो जाएगा. 3 स्क्वायर का मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर ऑफ एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय साइन एक्स. लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉपी कर लो. 9 कॉमन निकाल लो जी. ये बन जाएगा 2 पावर ऑफ x माइनस 1. इसको x की कमी है दे दो और इसको एक x कंपनसेट कर दो एंड दिस विल बी साइन x. ये लिमिट सिर्फ एक बार है. ये एक फंक्शन है. दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज द अदर फंक्शन. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. एक बार इसको भी मिलेगा, एक बार इसको भी मिलेगा. ऑल राइट. So limit x tends to 0, 9, 2 power of x minus 1 by x multiplied by limit x tends to 0, x by sin x. इसका वैल्यू क्या होगा? 9 times of log 2 multiplied by log 2 होगा ना, और ये हो जाएगा 1. सर 3 power of x, no. Oh. That's so nice of you. कैडबरी मिलेगा आपको जरूर. ठीक है, चलो चलो चलो. आप लोग मुझे इतना हड़बड़ी करवा दियो ना अपने एग्जाम्स के कारण, तो मेरी भी गलती हो जाती है. ऑल राइट. सो ये log 3 हो जाएगा. ठीक है, और ये वाला 1, तो आंसर हो जाएगा 9 log 3. राइट कृतिका? ठीक है. ऑल राइट. चल नेक्स्ट देखो, एक टाइप का क्वेश्चन वेर इन दे विल x 0 को टेंड नहीं करके सपोज 1 को टेंड करेगा एंड दे विल आस्क यू द वैल्यू ऑफ log x सपोज डिवाइडेड बाय x minus 1. प्लीज अंडरस्टैंड, हियर x is tending to 1 and all the formulae, महिमा I made you note right कि all the formulae जो हमने रटा है there x is tending to 0. Therefore I should try to write or rewrite in such a fashion that some variable tends to 0. So here again I told you that if x tends to 1, then I can very well write that x will be is equals to 1 plus something. मतलब कि 1 से थोड़ा ज्यादा अगर राइट तरफ से आ रहा है, इसको 1 से थोड़ा कम भी लिख सकते हो. दैट्स नॉट एन इशू. इसका मतलब क्या कि when x will tend to 1, h will tend to 0. अगर जैसे कि x का वैल्यू 1 हो जाएगा then h will become 0, no. And I can also write that this h x minus 1 का वैल्यू h है.
So putting all this over here, rewriting this, I think this will become limit h tends to 0 log x. जैसे यहाँ पर h रहता है ना कशिफा, देखना है जरा, यहाँ h रहेगा तो यहाँ कभी भी x मत छोड़ना, उस x को h के टर्म्स में लिख डालो. तो you can very well write x as 1 plus h and x minus 1 can be written as h. The moment you write this, अगर आपने सही से रटा है, a formula comes to your mind and this value is 1. Right? Okay, if you have understood. Right? Okay, if you have understood and copied. Wonderful. People, I have seen what your teacher has done in this school. He has done only a few easier ones, and so it is expected that in the exam you will get similar easy questions. So don't worry, जितना भी मैं कर रहा हूँ and जितना आपके स्कूल के टीचर ने किया, दोनों को मिला के अगर आप पढ़ लोगे तो you will be able to score full marks. So limit x tends to 0. Write down. No, don't do this question. 0 वाला नहीं, मैं चाहता हूँ tends to some other value वाला question आप प्रैक्टिस करो. जैसे कि एक्सरसाइज से ले रहा हूँ, limit x tends to 3 e power of x minus e cube divided by x minus 3. राहुल, आपको समझ में आ रहा है कि और आई एम गोइंग वेरी 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 फास्ट? So some of you might be thinking, sir, when you were teaching relations, functions, I used to think that you will go so slow, so slow. That I made myself slow for you guys. So when I take classes for, the graduates and all for competitive, so they would say, sir, you go very fast. So just because you guys are too young, so I thought I should go slow, but now I can't go slow, I have to go fast only. Now check this out. Here x tends to 3. I cannot do this question keeping x tends to 3 because I don't remember any formula. In all the formulas, sir made me note that x will always tend to 0. That means I should again convert it. So I can write this x as x could be 3 से थोड़ा ज़्यादा. That means कि when x will tend to 3, it implies h will tends to 0. So rewrite, let me change the color. Rewrite this in terms of h. So this will become limit h tends to 0. So e power of x, x नहीं लिखेंगे. मैंने कशिफा को बोला कि अगर यहाँ h लिखते हो तो यहाँ x कभी मत लिखना. So write in terms of h. So instead of x, you can write h. So I think this will become 3 plus h minus e cube divided by x minus 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? h ही होगा ना, तो लिख लो h. How simple. ये वाला है e cube into e power of h minus e cube. e cube को बाहर ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा. And by h, limit h tends to 0. e cube constant है, बाहर निकाल लो. तो limit h tends to 0 e power of h minus 1 by h का वैल्यू होता है 1. So answer e cube. Right, bingo, if you have understood. Ask me to repeat. Kashifa, you never asked me to repeat. Hope this is okay. Nowhere you are facing any problem. Mahima, check this out. Right. I think this much will be enough on, limits. So write enough, not enough. We'll change the topic now. Enough for your exam. When we do derivatives, we'll revisit this topic. And at that time, we will solve few more difficult questions also. So that in the final exams and all, we don't leave any stones unturned. Everybody write enough, not enough.
All right, that's fine. Then I close that one and let us begin a new topic today. So write down the new topic as straight lines. People, as far as I understand, I am going at my own speed, but I'm just not giving you guys enough time to solve. Apart from that, it is not that I'm leaving any topic or I'm jumping concepts and just काम चलाने के लिए कुछ भी बता दिया. ये सब काम मैं नहीं करता. So hope this much is okay. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जरा मैसेज कर लो, तब तक मैं एक पीपीटी रेडी कर ले रहा हूँ. स्ट्रेट लाइंस. Let me share this screen. Right, all set, good to go. Okay, actually this particular topic is a very huge topic. So I cannot finish this topic in less than 3 classes. So I have to give 3 classes on this particular topic, okay? So you guys can see the screen, right? So straight lines. People, straight lines is a part of a major topic called coordinate geometry. Now I said I will do 3 classes on straight lines, but after your exams we will do 4-5 more classes on straight lines. मतलब लगभग 8 classes चाहिए होंगे मुझे अच्छे से इस टॉपिक को करने के लिए, given the importance of this topic, right? So with a positive note, let us start straight lines. Write down straight lines. A lot of formulae, a lot of concepts. Let me know if you have done this particular topic in your schools. Class 10 में था क्या straight lines आप लोग का? Right? Yes, no? No, sir. No, sir. Just a moment. So I think ICSE में था, CBSE में नहीं होगा I guess. Yes, Rahul. Piyush, you there in the class? Yes, sir. Oh, you are there. So you're not answering? Yes, no, कुछ नहीं बोल रहे हो. I thought you're not there in the class. Oh. All right. For CBSE, it's a fresh. चलो. कोई बात नहीं. मैं एकदम zero से चलेंगे हम लोग, ठीक है? Don't worry. People, straight lines, as I said, is a topic from this major topic, coordinate geometry. In coordinate geometry, we have to study topics like straight lines, circles, parabola, hyperbola, conic sections. Coordinate geometry एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इतनी मोटी सी बुक हम लोग पढ़ा करते थे अपने समय में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है? Anyway, let us talk about the straight lines. People, as the name indicates, when I talk about the straight lines, first of all, let me talk about the x and the y axis. Today's class will go slow. This is the x axis and this is the y axis. In coordinate geometry, we called something called equation of a line. Equation of a line का मतलब क्या? जैसे कि अगर आप x axis को देखो तो इसमें एक पॉइंट होगा 1, इधर है मान लो 2, इधर है 3. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, 3,0. समझ रहे हो? तो इसमें जो भी पॉइंट आप लोगे उसका y वैल्यू 0 होगा.
इसका मतलब x एक्सिस का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू 0। इन द लाइक मैनर y एक्सिस में अगर कोई वैल्यू लोग, जैसे मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1। इसमें देखो हर जगह x का वैल्यू 0 होगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0। तो सर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज द कंडीशन फॉर विच that particular line, every point will follow that condition. So hope you understood. Equation of x axis y equal to 0, equation of y axis x equal to 0. When I say 4,2, it is called a coordinate of the point, and coordinate of a point is nothing. जब पहला जो 4 है यानी 4 unit along x axis 1 2 3 4, you know, and 2 unit along y axis. तो ये जो पॉइंट होगा 4,2, इसका कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा कोऑर्डिनेट। को मतलब टुगेदर, ऑर्डिनेट मतलब पॉइंट्स। ये x वैल्यू हो गया और ये y वैल्यू हो गया। You should understand that suppose this is my x axis, this is my y axis. Suppose this point is 2, this point is suppose -2, suppose this point is 3, suppose this point is -3, ठीक है। मान लो मैंने एक लाइन बना दिया पैरेलल टू दी y एक्सिस जो 2 से पास करता है, तो यहां पर कोई भी पॉइंट होगा ना, उसका पता है कोऑर्डिनेट क्या होगा? x का वैल्यू हमेशा 2 होगा, y का वैल्यू 1 हो सकता है, फिर 2,3 हो सकता है, मगर x वाला जो वैल्यू हमेशा 2 होगा। तो इस ग्रीन कलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2। सो सिंपल। मतलब सर y एक्सिस का इक्वेशन आपने बोला था x is equals to 0. So if there is a line parallel to the y axis at 2 units, then its equation will be x is equals to 2. So anyone who is smart can tell me the equation of this line passing from -2. Write down. So x is equals to -2. Wonderful. Tell me the equation of a line parallel to the x axis, ये blue color, passing through 3. इसका इक्वेशन क्या होगा? x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3। वंडरफुल। इन द लाइक मैनर टेल मी द इक्वेशन ऑफ दिस पर्पल कलर लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। अग्री? राइट, अग्री। ठीक है। सो हैविंग अंडरस्टूड दिस, let us go into the topic because these are the basic things you should know. Let us first do distance formula. लिखो distance formula. आप ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है शायद स्कूल्स में। पढ़ा है? Yes or no? So suppose there is a point x1 comma y1, and suppose there is another point x2 comma y2. The distance from this point A and point B, this distance is given as under root x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square. Right? Yes sir, if you have done this formula in the schools. Yes, that's very good. So there's no big deal. You can directly solve question on this. Consider, let's solve a question. Suppose there is a circle. The center is -2, 5. This is the diameter. तो एक पॉइंट A है 3, -7,
ये पॉइंट बी आपको नहीं पता, इसका नाम दे दिया अल्फा कॉमा बीटा. सो फाइंड दैट पॉइंट बी, फाइंड दैट पॉइंट बी. अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा और बीटा का वैल्यू क्या होगा. ठीक है. So I think you guys can solve this. If you simply know distance formula, it can be done by distance formula, or this particular question can actually be done by midpoint formula. So midpoint, I think again I think schools में आपने पढ़ा है शायद, right? Section formula पढ़ा है आप लोगों ने, midpoint formula पढ़ा है? Yeah, that's good. Then not a big deal. So x1 y1 अगर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा पॉइंट m is nothing but x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. So in this particular question, this minus 2 5 is the midpoint because radius बराबर होता है. तो ये -2 किसके बराबर होगा, 3 plus alpha by 2. You get alpha from here as -7. In the like manner 5 का वैल्यू क्या होगा, -7 plus beta by 2. From here you'll get beta as 10 plus 7 is 17. So alpha is -7 and beta is 17. Right? Okay, if you have understood. So hope ये वाला पार्ट स्कूल्स में आपका, आप लोग क्लास 10 तक आप किए हो, right? That's called the distance formula. I think that first chapter is more on the distance formula, but you know we need to do a little bit on that. Section formula आपको पता है? अच्छा, distance formula पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? लिखो एक क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो. Suppose there is a triangle. This point is 1, 1. This point is 2, 1, and this point I don't know h, k. Right? So are the vertices of a right angle triangle with AC as its hypotenuse and area of the triangle delta, मतलब area, triangle का area है 1 unit. So k का value निकालना है, ठीक है? So you need to find the value of k. So what is the area of a triangle? Half base is BC into height is AB. So first of all let us find BC. So आप देख सकते हो 1 से हो गया है 2. पीयूष इधर देखो, 1 से बन गया 2 और ये 1 सेम रहा है. दैट मीन डेफिनेटली बस ये एक ही यूनिट तो है. सो दिस BC इज 1 यूनिट. So if this is 1 unit, I think I can write AB by Pythagoras theorem. What is AB? I mean no, not Pythagoras theorem over here. I can just write AB by distance formula. क्या हो जाएगा जी? h minus 1 का square plus k minus 1 का square. And what is AC? AC I can write h minus 2 का square plus k minus 1 का square. And I know Pythagoras theorem is AC square plus AB square plus BC square. Putting this, इसको squaring करके BC square का value 1, तो आप करोगे तो you will get the value of H and K. I mean K कट जाएगा, so you will get the value of H. Okay, so if you put this, you will get H is equals to 1. So once you get H is equals to 1, you can also put and get the value of K. So if you put H is equals to 1 in this, you will get the value of K to be two values actually, 3 and -1.
So that's what they're asking, the values of k. I mean, after you get h is equals to 1, half bc, bc is 1, so आप क्या लिखोगे, 1 is equals to half times of 1 into ab. ab का वैल्यू यहाँ पर h का वैल्यू 1 करके लिख सकते हो, k minus 1 का होल स्क्वायर. आई मीन ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, दिस इज जस्ट k minus 1. प्लस माइनस निकलेगा. अंडरस्टैंड? just a moment. So half BC is 1 into AB. AB लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा जी, अगर h 1 होगा तो ये 1 minus 1 0 खत्म हो जाएगा. ये k minus 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो बाहर निकलेगा तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k minus 1 का होल स्क्वायर. तो AB will be actually प्लस माइनस k minus 1. सो एक बार आप प्लस करोगे तो you'll get k is equals to 3, और एक बार माइनस यूज करोगे you'll get k equal to minus 1. Right? These are the two values. Right? Okay, if you've understood. So I really don't remember that what all was there in class 10th. So, but then section formula was there. Section formula. All right. So distance formula and section formula, I can skip as of now. Right? Skip, or you want me to do? Distance formula per questions आप लोग कर लेना. I will directly jump into straight lines now, because in your exams they will not ask distance and section now, because that was there in class. Can skip. All right. So basically now let us start straight lines. Let us see here. As I had already said, equation of straight lines. So these are the x-axis, y-axis, but sometimes your straight line can actually be anything other than that. Okay, तो सबसे पहले आप एक टर्म समझो, स्लोप. स्लोप क्या होता है? मान लो एक लाइन है ये वाला OA. OA एक एंगल बना रहा है, मान लो 30 डिग्री. तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, मान लो ये B है, अगर आप tan 30 डिग्री निकाल दोगे तो इसका AB डिवाइडेड बाय OB हो जाएगा. ये जो tan 30 डिग्री आपने निकाला, इसी को आप कहते हो स्लोप. तो सर स्लोप क्या है? स्लोप कुछ नहीं, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस. एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन. सर नहीं समझ में आया. सपोज दिस लाइन इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल. सो इसका स्लोप क्या है? तो स्लोप को हम जनरली m से डिनोट करते हैं. तो स्लोप होगा कुछ नहीं, tan ऑफ 60 डिग्री. सो आंसर हो जाएगा √3. अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्लोप? राइट? यस. Right? So if angle is given, you can find the, oh god, I can't go, just a moment. It's not changing. All right, let me erase this part. Actually slope होता है y axis का values. स्लोप जब आप लिखते हो tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो इस लाइन का परपेंडिकुलर होता है ये और बेस होता है ये. तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं स्लोप. तो एंगल दिया रहता है तो बस tan निकाल दोगे तो स्लोप आ जाएगा. सेकंड लिखो, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, मान लो एक पॉइंट है
2,3 और एक पॉइंट है मान लो 4,7। ये एक लाइन हो गया। अगर मैं पूछूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो अब इसमें तो आपको एंगल निकालना मुश्किल होगा। तो आप क्या करोगे, आप समझोगे कि ये 2 और ये 3, चलो ठीक है, इसको ऐसे करके जोड़ लो। यहां से यहां तक 2 है, ये 4 है, इसका मतलब यहां से यहां तक 4 है, यानी ये जो डिस्टेंस बच गया 2, यहां से यहां तक 3 है और यहां से यहां तक 7 है, तो ये जो डिस्टेंस बच गया 4। ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर आप इसको प्रोड्यूस करोगे तो बाय ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है ना करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो वही तो हम निकालते हैं, tan of theta, because this theta is same as this theta, is nothing but this perpendicular by base, and your perpendicular is 4, your base is 2, so your tan of theta is nothing but 2, and this is called the slope of the line. सर इतना तो सर मेरे को नहीं टीचर ने बताया था ना, मुझे समझ में आता है। एक्चुअली मैंने आपको कोऑर्डिनेट से समझाया, मगर फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला लिख लो, टू फाइंड स्लोप कैसे निकालेंगे इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो आप डायरेक्टली स्लोप लिख सकते हो। ये अगर एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, then the slope will be nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1। जैसे कि इसको अगर आप x1 लोगे, इसको y1 लोगे, this will be x2, this will be y2। इस क्वेश्चन को अगर मैं अभी करूं ये फॉर्मूला यूज करके, तो y2 मतलब 7 minus 3 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 4 minus 2, so 4 by 2 is 2। देखो यहां भी 2 आया। राइट, अंडरस्टूड कि स्लोप कैसे निकालेंगे व्हेन पॉइंट्स आर गिवन। I can't insert page. I don't know how. Why? Okay, write down a question and then I will स्लोप निकालो। तो एक पॉइंट दिया हुआ है 1,-2 एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है -4,3। कॉपी दिस क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप। m मतलब स्लोप। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड थीटा। थीटा क्या है? एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस। ये एंगल भी निकालना है, ठीक है। इसको निकालो। तो कॉपी दिस क्वेश्चन एंड देन राइट कॉपीड। आई वांट टू चेंज द स्लाइड। इसको मैं डिसेबल करूंगा, दोबारा पीपीटी खोलना पड़ेगा। आई कैंट इंसर्ट पेज हैंग करके, ठीक है। पीयूष, आर यू राइटिंग? समझ में आ रहा है पीयूष आपको? यस सर। चलो इसको बनाओ, मैं पीपीटी को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा खोलना पड़ेगा हैंग करके। Can you guys see the screen? Right, yes sir. Yes Rahul, you can see the screen. All right, so I think the first one answer will be 3 minus of -2 divided by -4 minus 1. I think 5 by -5 is -1, correct? Right, yes, same. Angle made, so tan of that theta is equals to -1। ध्यान से समझो जी। अब देखो tan थीटा नेगेटिव है, तो आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में ऑल साइन tan cos, तो थीटा जो हुआ होगा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ होगा?
या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वाला जो लाइन है ये एंगल ये 1 कॉमा -2 है, देख रहे हो 1 एंड -2 मतलब नीचे एक ये पॉइंट हो गया, एंड -4,3 -4 इधर एंड 3 उधर, मान लो ऐसे। सॉरी, जरूरी नहीं कि सेंटर से पास करेगा, मैं इसको सेंटर से पास नहीं करा रहा। मान लो ये रफली मैं रफ स्केच बना रहा हूँ, ध्यान से देखो जी। सर आप ना ये सब मत समझाओ सर, आप बस फॉर्मूला बताओ। अरे फॉर्मूला तो बुक्स में लिखा हुआ है, तो मेरे से क्या पढ़ोगे आप। ध्यान से समझो कि ये लाइन मैंने ऐसे बनाया। स्लोप का मतलब क्या होता है कि अगर लाइन कोई ऐसा लाइन है, देन स्लोप इज द एंगल tan ऑफ द एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। लिख लो, ये जो थीटा हम लोग लिखते हैं ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर ये लाइन ऐसा रहा तब तो एंगल कितना बन रहा है जी, तब तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल ना बन रहा है। तब आपको ये एंगल बताना पड़ेगा, आपको ये एंगल नहीं बताना पड़ेगा। क्लॉकवाइज आप मेजर नहीं करोगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है। इस जब एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल, मतलब हम पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अगर कोई लाइन ऐसा है और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री नीचे, तो आप क्या बोलोगे कि इसका एंगल -45 डिग्री है, क्योंकि ये 45 डिग्री नीचे क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। सो slope can be positive or negative. In this case it will have a negative slope. In the like manner, in this question here this angle is required, that means second quadrant में theta चाहिए, तो -1 है, तो क्या लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4। अग्री? tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो -1 आ जाता है ना। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस π/4। So your theta will become 3π/4, right? Pi minus π/4 is 3π/4, मतलब 90 और π/4। 45 plus 45 2π/4 और एक और π/4, समझे? तो your answer will be theta will be 3π/4, right? Okay, if you have understood. ठीक है, चल नेक्स्ट लिखो जी, हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। लिखो, टॉपिक लिखो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सो अगर एक लाइन है उसका स्लोप m1 है, दूसरा लाइन है स्लोप m2, मान लो ये एंगल थीटा है इन बिटवीन देम, देन द एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। tan ऑफ थीटा इज m2 माइनस m1, या तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, इसका मैग्नीट्यूड m2 माइनस m1 बोलो या तो m1 माइनस m2 बोलो, बेटर होगा आप m1 माइनस m2 याद रखो। सर नहीं समझ में आया, आई गिव यू एन एग्जांपल। एक्चुअली ये वो फॉर्मूला से आता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ, डायरेक्टली रिमेंबर दिस एज द रिजल्ट। सो कैन यू टेल मी what will be the angle between the two the write down this question. So एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल है π/4, ठीक है। एक का स्लोप दिया हुआ है हाफ, तो दूसरा का स्लोप क्या होगा, चलो बनाओ।
फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan of the angle between this is modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है। tan पाई बाई 4 का वैल्यू तो होता है 1, 1 इज इक्वल्स टू, एक का वैल्यू मैं हाफ ले रहा हूं, इसको m1 पढ़ रहे हैं और इसको निकालना है, उसको पढ़ रहे हैं m2, तो हाफ माइनस m2 बाई 1 प्लस m2 इंटू हाफ, मगर मॉड आपको याद है आप क्या लिखते थे, मॉड x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या लिखते थे, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एक बार हाफ माइनस m2 बाई 1 प्लस m2 बाई हाफ इज इक्वल्स टू प्लस 1 करके m2 निकालोगे, और एक बार माइनस 1 करके m2 निकालोगे। अगर आप पहला वाला को यूज करोगे देयर विल बी सम m2, टेल मी द वैल्यू ऑफ दैट m2, एनीबॉडी। अगर आप दूसरा वाला यूज करोगे देयर विल बी वन मोर m2। सो बेसिकली जो दूसरा लाइन होगा उसका दो आंसर आएगा, एक लिखोगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा 2.5 आउट ऑफ 5, तो प्लस माइनस 1 होगा, एक बार प्लस लेकर के निकालना, एक बार माइनस लेकर निकालना। सो एनीबॉडी, सो सिंस टाइम इज लेस, एक वैल्यू आपका देखना आएगा 3 एंड दूसरा वैल्यू आएगा -1/3, राइट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। अच्छा, स्लोप क्या होता है यार, मैंने बताया स्लोप कितना एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस, उसका tan। मान लो एक लाइन है L1 और ये ग्रीन कलर लाइन है L2 एंड L1 इज पैरेलल टू L2। तो आपने स्कूल्स में पढ़ा है ना जी, पैरेलल लाइंस। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। रीजन क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल, याद है, दो पैरेलल लाइंस, वन ट्रांसवर्सल, ये एंगल बराबर होता था थीटा थीटा। तो आप समझो कि ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस है, सो दिस इज थीटा, दिस आल्सो थीटा। तो इसका भी tan तो वही होगा, दैट मींस इसका अगर स्लोप m1 है तो इसका भी स्लोप m1 होगा। सर नहीं समझ में आया, अगर इसका स्लोप m है तो इसका भी स्लोप m ही होगा। सो नोट में लिखेंगे पैरेलल लाइंस slopes are equal। So अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, then for parallel lines m1 is equals to m2, right? Okay, पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वेश्चन लिखो, कंसिडर दिस इज अ लाइन passing through 3,4 and 5,7। इस लाइन का नाम L1 है। दिस लाइन इज पैरेलल टू L2। फाइंड द स्लोप ऑफ L2, m ऑफ L2, जल्दी बताओ। फाइंड द स्लोप ऑफ M2, 3/2। वंडरफुल। तो कुछ नहीं, L1 का स्लोप निकाल लो, इसका नाम M1 दे दो, 7 - 4 y2 - y1 by x2 - x1, 5 - 3, so 3/2। जो इसका स्लोप इसका भी वही स्लोप, और प्रैक्टिकल भी लगता है, so आंसर इज 3/2, करेक्ट, राइट? नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट लिखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का साइन ऐसे दे रहे हैं पीयूष, देखो, परपेंडिकुलर लाइंस, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज अ लाइन एंड इट इज फॉलिंग ऑन सम अदर लाइन, ग्रीन कलर लाइन,
और ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका स्लोप क्या होगा, मान लो m2। तो इस केस में परपेंडिकुलर अगर होते हैं टू लाइंस, मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, सो इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन इनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 आता है। सर नहीं समझ में आया। पता है मैं शॉर्टकट कैसे याद रखता हूं, इसका मान लो स्लोप है 3/4 इस लाइन का। कशिफा यू विल लाइक दिस, इफ द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/4 तो इसका स्लोप पता है क्या होगा, 3/4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 का वैल्यू हो जाएगा -4/3। तो मैं कैसे याद रखता हूं पता है, 3/4 तो इसका हो जाएगा उल्टा करके नेगेटिव। पीयूष दिस इज विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर इसका स्लोप 3/4 है तो इसका स्लोप इसका उल्टा और एक माइनस अपने तरफ से। राइट, यू गॉट द शॉर्टकट, अंडरस्टूड द शॉर्टकट। लिखो एज वेल एज द फॉर्मूला। अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर है देन द स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है -1। शॉर्टकट क्या, रेसिप्रोकेट करो और अपने तरफ से एक माइनस डाल दो। सर नहीं समझ में आया सर, सही बता रहा हूं सर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, 4/4, 7 and 1, -5 ये किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन का नाम L2, इस लाइन का नाम L1। राइट द स्लोप ऑफ m2, जल्दी। -3/2। क्या बात है राहुल, एकदम लाइट का स्पीड हो गया तुम्हारा भी। ठीक है चलो, सो आई थिंक 7 माइनस ऑफ -5 12 डिवाइडेड बाई 4 - 1 3, तो 4, इसका स्लोप हो जाएगा -1/। मैं गलती किया हूँ क्या? सर आप राइट हो, -5 लिखा नहीं। तो मेरा चॉकलेट वापस कर दे भाई अच्छा ठीक है, एक घट गया, ठीक है 5 हो गया। समझ में आया जी, अंडरस्टूड। जल्दी जल्दी लिखो, 1 मिनट है, क्वेश्चन भी करना है अभी। चलो, line is passing through -2, 6 and 4, 8। ये लाइन किस पर परपेंडिकुलर है? This line is perpendicular to the line passing through 8, 12 and x, 24। तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा फटाफट। एट, 12। सो दिस लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है ये x, 24 एंड 8, 12 से पास करता है, एंड ये जो लाइन है -2, 6 एंड 4, 8 से पास करता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? टाइम हो गया है, चलो इसका स्लोप का नाम मैं दे रहा हूं m1। क्या बात है, चलो बहुत जल्दी बनाया, वंडरफुल। इसका वैल्यू नाम दे रहा हूं मैं m1, तो हो जाएगा 8 - 6। सर 6 - 8 करेंगे कि 8 - 6 करेंगे? यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको आप x1 y1 पकड़ते हो तो इसको x2 y2, मगर इस उसमें चेंज मत करना। जैसे कि 8 - 6 हो जाएगा 2 एंड 4 -2 हो जाएगा 6, हो जाएगा 1/3। तो इसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकेट करके माइनस, तो इसका स्लोप m2 का स्लोप हो जाएगा -3। और इस -3 को कैसे लिख सकते हैं, 24 - 12 12 and x - 8, so 3 4 ja x is equals to 4। right, okay, if you have understood। That's it for today guys, time is up, we will take up from here tomorrow same time. Till then, have a good sleep. Thank you everyone.
please share your notes with me.